Today we'll see just biology questions which were asked recently on this 1st September 2024. So total there were 10 questions. Question number 51, 52, 53, 54, 55, 84, 85, 86, 87 and 88. Total there were 10 questions. So first question I will read. Set it is set A set. Set is A set. So first question, which one of the following statement about lysosomes is not correct? What is asked? Not correct. So lysosomes, function of lysosomes we are knowing. Lysosomes, they are disposal system. They break down inorganic material. They are also referred as suicidal bags. Then the correct option is option D. Lysosomes stop the entry of foreign materials. Now next we will move to next question. Question number 52. Which of the following two cell organelles have their own genetic material? Now genetic material, it is present in nucleus. It is nuclear DNA. Outside nucleus, it is present in mitochondria and plastids. So correct answer goes C. Clear? Then we will move to next question. Question number 53. Which one among the following tissues helps to connect two bones? Now two bones, they are connected by ligaments. So answer of 53 goes B, ligaments. Areolar tissues, cartilage, these are wrong. Answer will be ligament. They help to connect the two bones. Then we will move to next question. Question number 54. Very commonly asked question. Which one among the following is the source of energy in cell? Each and everybody must have ticked this. ATP, adenosine triphosphate. It is energy rich molecule. So energy it is obtained from ATP. A very simple question. Then next question. Question number 55. I will read the question. In which one among the following the vegetative propagation takes place through eye or birds? Answer will be potato. Potato is having axillary buds. They are called as eye or birds. Commonly asked question. Then we will move to next question. Question number 84. Which one among the following diseases is caused due to deficiency of vitamin D? Vitamin D deficiency disease. It is commonly rickets. Beriberi, it is caused because of A, scurvy. It is C, pneumonia. It is a bacterial infection. So the correct answer is rickets. Clear? Then we will see next question. Question number 85. Which one among the following combination most appropriately represent the components of balanced diet?
Now balanced diet, it is answer will be carbohydrate, vitamins, proteins, fats and minerals. It is balanced diet. So answer is B. Then let's see next question. Question number 86. In which part or organ of human body cartilage is not found? So cartilage, it is present in nose, cartilage it is present in trachea, cartilage it is present in knee joint. So answer will be, correct answer is C, cartilage, it is absent in bronchioles. Bronchioles, these are small air pipes. The next question. Question number 87. Which part of nephron of the human kidney is responsible for filtration of blood for excretion? Correct answer is Bowman's capsule. You are knowing Bowman's capsule or glomerulus filter like this. This is Bowman's capsule. Here it is afferent arteriole, then these are glomerulus. So filtration, it occurs in Bowman's capsule. Then next question, last question. Question number 88. Last question. Organisms of which of the following phylums are called sponges? It is phylum Porifera. So correct answer is C. Once again I will tell you. The 51, correct answer is D. 52 C. 53 B. 54 B. 55 A. 84 C. 85 B. 86 C, 87 D and 88 C. Okay, thank you. अभी हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एंड के क्वेश्चन, और ये जो पेपर है वो है हमारा सेट ए। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था 56, इसका आंसर होगा डिफ्यूजन यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला क्वेश्चन 58 का आंसर है फॉस्फोरस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर है नाइट्राइड। 59 हो गया हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है 14 ग्राम यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑन हीटिंग, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल, ऑप्शन डी। 62 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वो बीच में अदर सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 113 से। तो क्वेश्चन नंबर 113, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 114 का आंसर है ऑप्शन बी, सही है हमारे पास ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो 115, इसका आंसर है नाइट्रोजन। 115 का सॉरी आंसर है नाइट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, इसका जो आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं 117,
इसका जो आंसर होगा वो यूरिया। सही है ये वाला ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, इसका इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलो अब करते हैं 119। 119 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 120 का करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, इसका भी ऑप्शन डी सही आंसर है। यानी कि हमारे जो केमिस्ट्री के टोटल 15 क्वेश्चन थे वो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ कुछ मतलब एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 जो एकदम से नए क्वेश्चन थे। यानी कि बट हमने जो पढ़ा था क्लासेस में वहीं से नंबर ऑफ द ज़्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो केमिस्ट्री का डिस्कशन हो गया, अब बाकी डिस्कशन बाकी टीचर्स करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू श्री स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी। अभी जैसे पता है कि आज 1 सितंबर है, 4:30 में आप गेट का पेपर दे करके बाहर आए होंगे। हमारे जितने भी एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके लिए अभी हमारी टीम ने फटाफट जितने भी फैकल्टीज थे आंसर की तैयार किया है। तो अभी फटाफट मैं आपको आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में आपको एक एक क्वेश्चंस का, ये जितना भी पहले मैंने डिस्कस किया था यहाँ तक कि वोकेब, एडीएम्स, ग्रामर का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ मैच किया है। ठीक है, तो चलिए पहले आंसर पहले डिस्कस कर ले फटाफट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या लिखा है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलिबल। ठीक है, फॉलिबल डेट मीन्स क्या, जो इजिली, तो यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। डेट मीन्स क्या, 1 का मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 1 का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट क्योंकि टाइम कम है अपने पास। चलिए वैग लिखा है, वैग ये तो बहुत ही ज्यादा आपने देखा होगा कि ये बहुत बार वर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो वैग का क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे, क्या होगा, ऑब्सक्योर्ड होगा। क्या होगा, ऑब्सक्योर्ड होगा। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं जल्दी से फटाफट, ये सब डिस्कस किया हुआ वर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पढ़िए जरा क्या लिखा है, सी परफॉर्म्स ऑल हर ड्यूटीज, है ना। कंसाइंस वर्ड से क्या लिखा है, कंसाइंसली लिखा है। डेट मीन्स क्या, क्या होना चाहिए था, जल्दी से बताइए। थर्ड कंसाइंस मतलब दिल से होता है, तो डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, केयरलेसली, यानी कि केयरलेस तरीके से होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जल्दी से फटाफट, बाद में डिटेल्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्या लिखा है, देयर आर रिस्क आइडेंटिकल टू द वर्क ऑफ, क्या लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है स्क्रीन पे, फायर फाइटर। ठीक है, इंसिडेंशियल लिखा है, डेट मीन्स अब यहाँ पे एडवेंसियस होगा, डेट मीन्स बी होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से फटाफट आते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से देखिए क्या होगा। मैम स्क्रीन थोड़ा सा इधर मेरे को करके, बस हो गया दिख रहा है। शी इज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल वर्ड देखिए मैंने पहले डिस्कस किया था, डिसडेनफुल। जल्दी से बताइए, डिसडेनफुल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। रेवरेंट वर्ड मैंने आपको कितना बार बताया था ना, डिसडेन मतलब क्या, डिसग्रेस है, तो रेवरेंट से क्या होगा, रेवरेंशियल हो जाएगा, इसलिए ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से, मैं इसका बस आंसर बताते चलता हूं, बाद में मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। 6 का क्या होगा, 6 का होगा डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का द इज द परफेक्ट आंसर। 8 का क्या होगा, डी होगा। 9 का क्या होगा, सी होगा। जल्दी से फटाफट अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट 10 का सी, 10 का सी ये बिल्कुल सही है, 10 का हमारा सी होगा। 11th का ए इज द राइट आंसर। ये क्लोजेस्ट है, मैंने पहले बताया भी था कि ऐसे ही एग्जाम में एक तो पूछेगा ही पूछेगा। 12 में देखिए, 12 में क्या होना चाहिए था, 12 में ठीक है डी। 13 आर सिलेक्टेड। अभी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग बात हुई, हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट क्या होगा, प्लांट दैट लैक्स विच ओवर।
क्वेश्चन नंबर 14 डेट तो होगा नहीं, वेन एवर लैक्स रेसिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे। और 15 में क्या होना चाहिए था, 15 में हमारा क्या होना चाहिए था, बी आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट जल्दी से फटाफट अभी चले हम। ये क्या था, डायरेक्शंस, फ्यूचर सेंटेंस फॉलोड बाय द 4 अल्टरनेटिव, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, इधर आते हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं। बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीति सजेस्ट। अब जरा देखिए सेंटेंस कहाँ पे चल रहा है, सेंटेंस कहाँ पे चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। और जब सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेंटेंस, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस हमारा जब प्रेजेंट में चलेगा, प्रेजेंट में चलेगा तो आगे भी जितने भी नंबर ऑफ क्लॉज होंगे सब के सब किस में कैरी फॉरवर्ड होंगे, प्रेजेंट में ही कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, आगे जितने भी नंबर ऑफ क्लॉज हैं सब किस में कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, आई आस्क यू, है ना। अब यहाँ पे देखिए जरा दो ऑप्शन है, डेट आई आस्क टू योर एडवाइस, डेट आई आस्क योर एडवाइस, सिंपल, डेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 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 पढ़िए जरा क्या लिखा है, वी सॉ। आपको पता है कि ओल्डर ओल्डेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट क्या है, जरा यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के केस में क्या आता है, द का यूज होता है, इसलिए क्या होगा, ये द का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट जल्दी से। पढ़िए जरा क्या लिखा है, सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल डे, है ना, टूरिंग ऑल डे, टूरिंग पूरा दिन काम ही कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होंगे, थक गए होंगे। तो क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। बहुतों ने सही किया है, करेक्ट किया है। मे, माइट, मस्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि किस सिचुएशन में यूज करेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा है, हिज कंडीशन इज सीरियस बट, हिज कंडीशन इज सीरियस बट, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए था आंसर। इतने देर में तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा। 19 का सी क्या होगा, इट कुड बी वर्स, क्या होगा, इट कुड बी वर्स हो सकता है और भी बेकार हो सकता है। नेक्स्ट पढ़िए जरा, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इधर गया। पढ़िए जरा, आई होप द बस कम्स सोन बिकॉज, उम्मीद करता हूँ। सेंटेंस कहाँ पे चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है ना। और यहाँ पे जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का जब भी यूज करेंगे, मैंने आपको लॉजिक एक बताया था कि जब भी सेंटेंस में, जरा यहाँ पे देखिए सिंस, मैंने ये कई बार बताया था, जूनियर बच्चों को भी पता है कि सिंस और फॉर के साथ जब भी टाइम आएगा, एक लॉजिक फट से आपके माइंड में आना चाहिए था, क्या कि सेंटेंस में क्या बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो डेफिनेटली बात किसकी होगी, अरे प्रेजेंट में चल रहा है तो बात किसकी होगी, सेंटेंस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको कितना बार पढ़ाया था, तो क्या होना चाहिए था, हैज बीन और हैव बीन। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास। पढ़िए जरा, समवन, यहाँ पे क्वेश्चन कट हो रहा है मैम, मेरे को स्क्रीन पे दिखेगा क्या, 21 मेरे को क्वेश्चन कटा हुआ मिला है, हैव स्प्लिट जूस ऑन द सोफा। समवन, देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था यहाँ पे, जरा देखिए, ये भी मैच के मैंने बताया था कि वन बॉडी और थिंग, ये एज अ सफिक्स अगर आपको दिख जाए, कैसे दिख जाए, एज अ सफिक्स दिख जाए, तो वन बॉडी और थिंग को हमेशा क्या मानना है, एक मान लेना है। जब एक मानेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके रिगार्डिंग जो भी फोर्थ कमिंग जो भी वर्ब आएगा, हमेशा एस बी लिखा तो क्या, सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रही क्या मेरी बात। और ये चीज मैंने आपको बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अब मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए था, समवन, वन आया तो डेफिनेटली बात सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22
व्हाट वुड यू डू। अब जरा देखिए वुड, ठीक है, बात किसकी हो रही है, वुड की हो रही है, वुड की। तो क्या होना चाहिए था, जल्दी बताइए। इफ यू विल हैव फाउंड, विल हैव फाउंड, अब फ्यूचर परफेक्ट में चले गए। इफ यू वुड फाउंड हो गया, वुड मोडाल्स एक्सुअली वर्ब है तो V1 चाहिए, इधर V2 हो गया। यू हैव फाइंड, यू हैव, इफ यू हैव फाइंड योर लॉस्ट टॉय, है ना, क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैव फाइंड। अगर तुम पाते हो अपने लॉस्ट खोए हुए टॉयज को, है ना, तो तुम क्या करोगे, है ना, व्हाट वुड यू डू। तो क्या होना चाहिए था बताइए, इफ यू। अब जरा मुझे बताइए कि ऑप्शन ए होगा और डी होगा, जल्दी बताइए। इफ यू फाउंड योर लॉस्ट टॉय व्हाट वुड यू डू। अब देखिए पास्ट में चल रहा है तो विल का भी पास क्या होगा, वुड होगा। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इधर इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इफ आई वर यू। ये जरा देखिए, मैंने आपको कितना बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया था, अरे बोलिए ना, बताया था कि नहीं बताया था। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैंने आपको बताया था, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जब भी प्रेजेंट में इम्पॉसिबिलिटीज को बताना होता है तो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बताया था, वुड कुड शुड प्लस V1 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इफ आई वर यू आई वुडेंट बाय दैट ड्रेस, है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद उस ड्रेस को, है ना, कभी नहीं खरीदता। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 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 24 पे आते हैं, 24 पे आते हैं। आई विश, विश, इसके बाद जब भी हम यूज करेंगे तो हमेशा आपको ध्यान देना है, इसके बाद जब भी हम यूज करेंगे आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस विश, इसके बाद नेक्स्ट जो भी क्लॉज होगा सब्जेक्ट प्लस V2 या मोडाल से ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो हम क्या यूज करेंगे, V2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए था। 24 में क्या होना चाहिए था, जल्दी बताइए। आई कुड हेल्प यू, आई आउट टू तो मैंडेटरी इंडिकेट करता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हैव नॉट बीन क्वाइट अप टू मार्क, अप टू द मार्क मतलब जैसा अप टू द मार्क मतलब कहने का मतलब क्या, जो जितना चाहिए उतना शायद नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज द डी। ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं फटाफट। वेट, ये जरा देखिए, ईडियम्स तो सब का सब मैच किया है, ईडियम्स सब का सब मैच किया है, पांचों के पांचों ईडियम्स बिल्कुल जो मैंने नोट्स दिया था उसमें सारे के सारे ईडियम्स क्या हुए हैं, टोटली मैच किए हैं। जल्दी बताइए मुझे 26 का आंसर क्या होना चाहिए था। अ वाइट लाई क्या होगा, अवॉइड हर्टिंग समवन, अ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, दैट मीन्स क्या, डी इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 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 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बैड ब्लड, ये तो यार कितना बार बताया था बैड ब्लड, नोट्स उठा करके देखो तुम्हें मिलेगा इडियम्स वाले में। बैड ब्लड, बैड ब्लड, टर्म्स ऑफ होस्टिलिटी बताया था, एंड इनिमिकल टर्म्स भी बताया था, दो लोग के बीच में जब कन्फ्लिक्शन हो जाता है तो भी हम बैड ब्लड का यूज करेंगे। तो क्या होगा, हेट्रेड बिटवीन द पीपल होगा, डेट मीन्स क्या, राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। अरे समझ में आ रही है, मिल रहा है क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ कि नहीं हुआ है, तुम लोग खाली मोबाइल में लगा रहता है, देखो इधर सब पढ़ाया हुआ है क्वेश्चंस, मोबाइल चाहिए तुम लोगों को खाली। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अब बताओ, अब इतना भी सिंपल नहीं बनेगा। काउंट योर ब्लेसिंग्स क्या होना चाहिए था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा, है ना, काउंट योर ब्लेसिंग, यानी कि जिंदगी में जो है उसके लिए क्या, एहसानमंद समझना भगवान का। तो क्या होगा, टू बी ग्रेटफुल, क्या होगा, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ, जिंदगी में जो भी कुछ मिला है उसी को लेकर के खुश रहना, यानी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। समझ में आ रही बात, घुसे रहो सब मोबाइल्स में खाली, पढ़ाया हुआ चीज तो पढ़ोगे सब नहीं, देखो यहां पे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। समझ में आ रही बात, वही वाला कॉन्सेप्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जरा पढ़िए जरा,
हैव द लास्ट लाफ, इसके लिए मैंने आपको इडियम्स भी बताया था, हु लाफ बेस्ट, हु लाफ लास्ट। असली हंसी वही होती है जो बाद में हंसी जाती है। दैट मीन्स बात किसके ऊपर कर रहे हैं? सक्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए था? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से मुझे आंसर बताओ 29 का क्या होना चाहिए था? To succeed when others thought that you would not, to solve all the problems of life, to laugh or someone secretly, to succeed when others, है ना? इसलिए बोलते हैं कि असली हंसी वही होती है जो लास्ट में हंसी जाती है। हु लाफ बेस्ट, हु लाफ लास्ट, ये इडियम्स मैंने पढ़ाया था आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आते हैं फटाफट। चलिए जरा, हाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा रे। दुर्गम का जगत के जेते, सीट ऑन द फेंस, कितना बार पढ़ाया था? नोट्स उठा करके देखो, अगर नहीं उसमें मिलेगा तो फिर मुझे बोलना सीट ऑन द फेंस। हाँ, ये रसिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट चल रहा था मैंने उसमें बताया था, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू सिट ऑन द फेंस, यानी कि जो बीच में जो देख रहा है, सामने कुछ भी चल रहा है लेकिन बीच में वो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहा है। साथ उसके इंटरफेरेंस करने से वो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पढ़ो जरा, क्या होगा? टू मेक समवन सडनली नोटिस टू यू, टू फेल कंप्लीटली, टू डिले मेकिंग द डिसीजन। मतलब सामने कुछ भी हो रहा है उसमें हम कुछ इंटरप्ट कर ही नहीं रहे, ना ही कुछ डिसीजन दे रहे हैं, यानी कि चुपचाप टकटकी लगा करके देख रहे हैं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? अरे क्या होगा, जल्दी बताओ ना। सी होगा। ये सब क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा यार। हाँ, अब आंखें खोल लीजिए, अगली एग्जाम से अप्रैल के लिए एकदम कमर कस लीजिए आप फटाफट। चलिए आते हैं, ये देखो पैराजम्बल्स मैंने पिछले एग्जाम में भी बोला था, इस एग्जाम में भी मैंने बोला था, आपको मिला होगा। चलिए जल्दी बताइए, ये तो इतना सिंपल है। मैंने बताया था कि जितने भी पैराजम्बल्स हैं आप उसको एलिमिनेशन टेक्निक या सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बताओ 31 का क्या होगा? जल्दी बताओ 31 का क्या होगा? देखो क्या लिखा है, गुड क्वालिटी एलिमेंट्री। मैंने बताया था कि जब भी सेंटेंस में हम एलिमिनेट करेंगे, सबसे पहला टारगेट फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या करना है? निकालना है। दैट मीन सबसे फर्स्ट सेंटेंस को निकालना है। और मैंने बताया था कि जहां पे भी एब्रिवेटेड फॉर्म में आएगा और जहां पे उसका फुल डिक्लेरेशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाए और उसका फुल डिक्लेरेशन किया जाए तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटेंस क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो इतना तो फटाफट एस्टिमेशन कर लिया कि मेरा पहला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? आर होगा। पहला जो सेंटेंस होगा हमारा क्या होगा? आर होगा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा आर होगा, तो अब मेरे को क्या करना है? वैसे सेंटेंस को फाइंड आउट करना है ना कि जहां पे पहला जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आर से शुरू हो रहा है। तो जरा देखो आर आर, यानी कि बी और सी। अब देख लेंगे कि आर का रिलेशन पी के साथ है कि आर का रिलेशन क्यू के साथ है। तो अब जल्दी मुझे बताओ कि क्या होगा? आर पी एस क्यू। पढ़ो जरा, द राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट, और उसके बाद अगर मैं पी पढ़ रहा हूं, गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फर्मिंग टू द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, किसको दिया जा रहा है? तो टू द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट एज अ। अब जरा देखो रिलेशन मिल पा रहा है एस और क्यू का। अब इधर देखो आर और पी का रिलेशन मिला और इधर एस और क्यू का रिलेशन मिला, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? 31 का बी होगा राइट आंसर। ये जरा देखो ना, सब एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तुम लोग झूठ मूठ का टेंशन लिए रहता है, पगला रहता बिना मतलब का। चलो क्वेश्चन नंबर 32 बताओ जल्दी से। 32 बताओ जल्दी से। 32 में क्या होना चाहिए था? जल्दी बताओ। क्या बोला है कि द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट इन देयर माइंड, इन देयर माइंड। देखो देयर माइंड दैट मीन्स बात पहले हो चुकी है ना। देखो मैंने बताया था देयर माइंड दैट मीन्स पहले कुछ तो मुद्दा हो चुका है। अब जल्दी आओ आगे आओ, क्या होना चाहिए था? म्यूजिक नॉट ओनली रिलेव। अब जरा देखो, नॉट ओनली के साथ मैंने बताया था कि बट ऑल्सो का रिलेशन आता है। क्या आता है? बट ऑल्सो का। अब सेंटेंस में आपको क्या करना है? पेयरिंग करना है ना? ठीक है, तो अब क्या बोला है कि म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन। किसके ऊपर? तो चिल्ड्रन के ऊपर। तो डेफिनेटली है कि क्यू के बाद जरा देखो ना, रिलेशन क्या आ रहा है? आर आ रहा है, और आर आ रहा है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए था? बट ऑल्सो चाहिए था। बट ऑल्सो किस में दिया है? एस में दिया है। अब बचा कौन? जो एक बचा अपना जगह ले लेगा, यानी कि क्यू आर एस पी। क्यू आर एस पी दैट मीन्स क्या? राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। देख रहे हो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ? अब इतना भी सिंपल इंग्लिश में अगर एनडीए के एग्जाम में आ रहा है तो अब समझो कि तुम लोग बहुत लकी हो। अब इसमें कोई एक्सक्यूजेस वाली बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। ये पैराजंबल देखो सब ट्रिक से सॉल्व होगा, जो मैंने ट्रिक आपको बताया था। पढ़ो जरा।
बट क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन से सेंटेंस कभी शुरू होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि जब कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू होगा नहीं, बट क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अरे है ना कंजंक्शन, तो कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू होगा नहीं, तो होगा नहीं तो किससे शुरू होना चाहिए था फिर? अब जरा देखो क्या लिखा है, अंटार्कटिका इज। अंटार्कटिका क्या है, नाउन है, नाउन है, तो नाउन से सेंटेंस शुरू होना चाहिए था। यानी कि एक ऑप्शन हम क्यू ले सकते हैं। क्यू मेरे को दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। अब बस जब दो ऑप्शन में आप फुल्ली डिटरमाइंड आपने कर लिया कि या तो ए होगा नहीं तो क्या होगा, सी होगा। अब रिलेशन को फाइंड आउट कर लो ना, क्यू के बाद आर चेक करो या क्यू के बाद क्या चेक करना है, एस चेक करना है। देखो जरा क्या हो रहा है, क्यू आर। अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट नियरली ट्वाइस एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितना बड़ा है, छोटा है, दैट मीन्स क्या, अब तो यही दिख रहा है। फिर पी में क्या बोला, बट इट इज वर्चुअली कवर्ड बाय द डेंस आइस शीट नियरली 2 miles थिक। दैट मीन्स क्या, ए इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा। अरे यार ये सब क्वेश्चन तो एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो गया ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। 34 क्या बोला है कि द ग्लोबल इकोनॉमिक, चलो पहले तुम ही लोग पढ़ो फटाफट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 34, द ग्लोबल इकोनॉमिक वेट फ्रॉम द एडवांस्ड economize that there was a major shift in a central bank and the government recognition the fact the G20 was formed। अब जरा देखो, किसी सिचुएशन के ऊपर हम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात हो रही है, इधर गया, इधर जरा देखो, G20 के ऊपर बात हो रही है ना, was formed। जैसे मैंने बताया था, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। Security and Exchange Board of India was established in 1988 to regulate the function ऑफ स्टॉक मार्केट। दैट मीन्स कोई भी चीज जो पहले बिल्डअप हुआ गया है, फॉर्म किया गया है, बनाया गया है, इन्वेंटेड किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट उसके फर्स्ट होने की क्या होती है, संभावना वही होती है। यानी कि इतना तो हमने एस्टिमेशन कर ही लिया कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था। अब जब एस आपने एस्टिमेशन कर लिया तो प्रोबेबिलिटी तो यही है ना भैया, या तो ए होगा नहीं तो क्या होगा, डी होगा। आप जरा चेक करो जल्दी से फटाफट। अब रिलेशन ही तो ढूंढना है कि एस के बाद पी होगा कि एस के बाद आर होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एस के बाद आर की पी। द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999 एज फॉर्म ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक। यानी कि डेफिनेटली है कि अब यहां पे एस के बाद जो मेरे को रिलेशन मिल रहा है वो किसके साथ मिल रहा है, आर के साथ। जब एस के साथ आर का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऑप्शंस को फाइंड आउट करूंगा ना। मैंने बताया था कि जब भी आप पेयरिंग कर लो, कुछ नहीं करना है, सीधा ऑप्शन के ऊपर जाना है। ऑप्शन के ऊपर जाना है तो क्या देखेंगे, एस के साथ आर का पेयरिंग मिल रहा है। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो ना। जब मिल रहा है तो सोचना है क्या, फटाक से आंसर मारो और आगे बढ़ो। ये सब ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ था। अब ये सब क्वेश्चन अगर ना बने तो दुख की बात है ना। आइए आप लोग फिर मिलते हैं अभी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए, जल्दी से फटाफट बताइए। 35 जल्दी से बताइए, 35 में क्या होना चाहिए था। ये तो बहुत ही सिंपल है ना। इंडिया पहले ही मिल गया। जरा देखो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, क्या तो फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकेंड लार्जेस्ट क्या है ना, एक्वा कल्चर नेशन इन द वर्ल्ड। क्या होगा, अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल था। 35 देखो तो दम है क्वेश्चंस में, यहां पे आपको दिख रहा है। और फटाफट बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर आते हैं। आइए 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 यहाँ पे। चलो 35 तक हो गया था ना, बैटरी खत्म हो गया अभी, इसलिए फिर दोबारा से आ गए। ठीक है, थैंक यू मैम। आते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन पे। ये जरा देखो सब, तो ये तो रूल्स कितना बार पढ़ाया था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट पे ही हमारे पास सेंटेंस होगा। तो अब जरा देखो, इधर अगर मेरे को वर्ब दिख रहा है तो इधर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जब सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो नाउन होगा नहीं तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा ना। बोलो ना, अरे सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन होगा नहीं तो क्या आएगा, प्रोनाउन होगा। राइट आंसर क्या होगा, नाउन होगा। नहीं बनेगा क्वेश्चंस, सब पढ़ाया हुआ प्रैक्टिस कराया हुआ क्वेश्चन था इस बार तुम्हें। चलो नेक्स्ट 37, शी स्पोक टू हिम वंस सिंस। आप जरा देखो, सिंस क्या है यहाँ पे, ही हैज बीन इन टाउन। सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। ये पहला क्लॉज और ये सेकेंड क्लॉज। 2 क्लॉज को कंबाइन करने का काम किसका,
दो क्लॉज को कौन जोड़ने का काम करता है? कंजंक्शन ना। तो जब दोनों क्लॉज को जोड़ेगा तो कौन जोड़ेगा? सिंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन होगा। हाँ, ये सब क्वेश्चन ना बनेगा। चलिए जरा नेक्स्ट। आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ। नाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है तो राइट आंसर क्या होगा? अरे एडवर्ब ऑफ टाइम कितना बार बताया था? राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ई जिसने किया है वो गलत है। बिसाइड्स ये जरा देखो क्या है? प्रीपोजिशंस है, समझे? अगर वो पूछा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट 39। लुक एट डैट। डैट मैन। डैट मैन डिटरमाइनर का काम कर रहा है ना, कंजंक्शन थोड़ी है। ये डिटरमाइनिंग का काम कर रहा है। वो डिटरमाइन कर रहा है कि उस पर्सन के बारे में बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन। चलो हाँ देखो, रेडी फॉर व्हाट? रेडी फॉर डांस, रेडी फॉर क्लास, रेडी फॉर टेक ऑफ। अब यहां पे जरा देखो, है ना। अब यहां पे सेंटेंस में टेक ऑफ क्या है ना? द प्लेन इज गोइंग फॉर टेक ऑफ, उड़ने के लिए। अब यहां पे मेन वर्ब की तरह तो काम नहीं कर रहा है ना। अगर सेंटेंस बीच में रहता तो वर्ब होता। किस काम के लिए? है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग फॉर व्हाट? सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। तो इसके बाद जब भी आएगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लेकिन टेक ऑफ जो है, एग्जैक्टली जो टेक ऑफ है, अगर है ना टुक ऑफ, सब्जेक्ट के बाद अगर यहां पे आइएगा, सब्जेक्ट के बाद यहां पे कंफ्यूजन है, देखिएगा सब्जेक्ट के बाद अगर यहां पे आएगा तो क्या होगा? वर्ब होता। लेकिन फॉर किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? है ना, गोइंग फॉर व्हाट? मार्केटिंग, है ना, उड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे क्या होगा? नाउन होगा। समझ में आ रही बात? वर्ब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने वर्ब आंसर किया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती है, ठीक है, मिस्टेक है। बहुत सारे लोगों ने वर्ब मारा है यहाँ पे। अब जरा देखिए, मैं इस पूरे पैसेज का आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट करते चलिएगा। मैंने अभी भी सॉल्व किया है। 41 में जो भी आपने पैसेज पढ़ा होगा, 41 का क्या होगा? 41 का ए इज द राइट आंसर। ये इसका मैं आंसर बताऊंगा, बाद में डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट 42 पे आइए। 42 पे आइए, क्या होगा 42 पे? जल्दी से, है ना। 42 पे जरा देखिए क्या होगा? द क्रिएशन ऑफ न्यू मेडिकल सिस्टम की वजह से सिर्फ ग्लोबलाइजेशन डिजीज के ऊपर बात नहीं हो रही है ना, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट 43 पे आइए। 43 पे आइए। अब यहाँ पे देखिए मेडिकल प्रैक्टिसेस बोला है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, इमरजेंस ऑफ न्यू स्ट्रेंस, तीनों के बारे में पैसेज में बात हुई है, तीनों के बारे में बात हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 44 पे चलिए जरा। 44 पे इतना जल्दी नहीं, 44 पढ़िए जरा क्या लिखा है, पढ़िए राइट आंसर क्या होगा 44 का? जल्दी मुझे बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमंस आर कमिंग इन कांटेक्ट विथ अनफेमिलियर वायरस, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है। चलिए 45 पे आते हैं। 45 पे आते हैं। यहाँ पे 45 पे क्या बोला है? इपिडेमियोलॉजी बोला है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी। लॉजी लग गया तो स्टडी से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है तो क्या होगा? ए किसने टिक आउट किया, बट ये क्या है? ए इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। नेक्स्ट फटाफट नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन, ये तो इसका साइनो साइनो आपको पता ही है। ये जरा बताओ, क्वेश्चन कॉशियस डेट मीन्स क्या? वार्निंग तो दिया जा रहा है। अब इतना भी यार सिंपल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताओ सब ना, है खाली मोबाइल में घुसा रहता है सब, देखो सब पढ़ाया हुआ चीज आया है। चलो देखो इधर, नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो। नेक्स्ट 47, the officer reported the details of the mission in a monotonous ये वर्ड बताओ जरा। अभी रिसेंटली कितना बार मैंने डिस्कस किया था, है ना। मोनोटोनस मतलब एक सुरीला, मतलब क्या होता है? टीडीएस, पकाने वाला। ऑकवर्ड सेंस में मतलब जो बहुत ही अपने आप में क्या है? बेकार है ना। मोनोटोनस ये वर्ड मैंने बताया था। राइट आंसर क्या होगा? डल ही तो होगा। देखना जरा, नोटबुक पलट के देखो जरा। ये अभी रिसेंटली टेस्ट भी कराया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, ये वर्ड आया भी था। पढ़ो जरा। इल्यूसिव क्वेश्चंस,
क्या होगा जरा बताओ, किसमें दिया है? फिलोसफी में। मतलब ऐसा चीज जो क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने का काम करता है बार बार। तो कंफ्यूज करना मतलब क्या करना? बैफलिंग ना एक तरह से। राइट आंसर क्या होगा? बैफलिंग होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 पे आते हैं। पढ़िए जरा, मैमूथ, ये जरा बताओ ये कितना बार है ना? एक्स्ट्रावेगेंट, एम्पल, इनॉर्मस, नेक्सस, कॉस्मोस, ये वर्ड कितना साइनो बताया? मैमूथ, मैमूथ मतलब क्या? गिगनेटिक। ये जरा बताओ कितना बार ये वर्ड डिस्कस हुआ? तो क्या होगा? ह्यूज होगा ना। ह्यूज बोलो, कोलासाल बोलो, मैमूथ बोलो, नेक्सस बोलो, एम्पल बोलो, इनॉर्मस बोलो, अबेंडन बोलो, सबका मतलब क्या होता है? ह्यूज। राइट आंसर ए। चलो चलो देखो जरा, इधर आओ, इधर आओ। टार्निस्ट, टार्निस्ट जल्दी बताओ, टार्निस्ट क्या होगा? टार्निश का मतलब क्या होता है? कलंकित करना, धब्बा लगाना किसी के ऊपर, है ना, दोषारोपण करना, है ना, किसी भी तरीके से किसी चीज को क्या करना? ह्यूमिलिएट करना, यानी कि एक तरह से टेंटेड करना किसी चीज को। इसलिए राइट आंसर क्या होगा जरा बताओ मुझे? टेंटेड, टेंटेड इज द राइट आंसर। आप जरा मुझे बताओ। 50 के 50 क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है, और भी ज़्यादा डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा, बट आपको फटाफट मैंने क्वेश्चन को क्या किया? आपके सामने डिस्कस किया। देखिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी के साथ। आगे नेक्स्ट अभी आपको और भी सारे जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सबके आंसर की अभी आपको तुरंत मिलने वाले हैं हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, तो चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद। शुरू हो गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे जीएस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 73 ये सेट ए है, जो एनडीए का एग्जाम हुआ है उसका सेट ए। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा सी। ठीक है, 73 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 74 का आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 प्लानिंग कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 फिर से 5 ईयर प्लान के ऊपर है, 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा डी करेक्ट। 77 का आंसर डी, यानी कि सारे सही हैं। सारे के सारे जो प्लान है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के पहले आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ जी, लैंड के बारे में। तो कौन सी लैंड को क्या बोलते हैं, जिसको 5 साल से ज्यादा के लिए छोड़ जाता है उसको बोलते हैं कल्टिवेबल वेस्टलैंड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट तो है वहां पे, और तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैक्सिमम रेनफॉल ओकर्स बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। नहीं, मई के बाद रेनफॉल होती है और दिसंबर तक कंटिन्यू रेनफॉल होती है अंडमान निकोबार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा डी, मिस्ट्रल। ये फ्रांस की विंड है, फ्रांस। ठीक है, ये बाकी सारे मेडिटेरियन के आसपास की विंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक वाटर बॉडी? बहुत आसान क्वेश्चन है। इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज द लैंडलॉक बॉडी, लैंडलॉक वाटर बॉडी। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? बेंगुला के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका नहीं करता है, साउथ की तरफ करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, साउथ अफ्रीका। उसके बाद लोवेस्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट बोल्सम, पलाया के बारे में पूछ रहा है, पलाया 83। ठीक है, तो ये कौन सी लैंड फॉर्म है? एरिड लैंड फॉर्म है, डेजर्ट्स के अंदर क्रिएट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 का क्या होगा? क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन बायोलॉजी का है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 99 पे, जीएस के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, एंड
9। ठीक है, तो 99 का आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द आंसर इज द जेम्स वॉट ने जो इन्वेंशन किया था उससे क्या हुआ, एक पंप की तरह नहीं, एक एनर्जी प्रोवाइड करने लगा किसको, मशीन्स को, जो जेम्स वॉट ने इंजन बनाया था, स्टीम इंजन। ठीक है, द फर्स्ट कॉटन मिल इन ब्रिटिश इंडिया जो प्रोड्यूस 1856 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये मिल जो लगी थी वो 1854 में चालू हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा CN डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 101। 101। ठीक है, तो 101 का जो आंसर होगा वो होगा A। 101 का आंसर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102। 102, हाँ जी, तो सी राजगोपालाचार्य ने कहां से सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था? त्रिचुपल्ली टू वेदानियम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? C। आचार्य विनोबा भावा रिसीव्ड द फर्स्ट डोनेशन लैंड अंडर द भूदान मूवमेंट। कहां से स्टार्ट किया था भूदान मूवमेंट? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने क्या स्टार्ट किया था? भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज मक्का वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया। ठीक है, कहां से कहां इंट्रोड्यूस किया गया? तो पहले अफ्रीका फिर स्पेन। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा B। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 105। 105 पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बनिहाल पास ग्रेट हिमालय रेंज, सही बात है बिल्कुल, ग्रेट हिमालय में ही पड़ता है, तो बनिहाल पास ग्रेट हिमालय रेंज में आएगा। तो एक तो ये सही हो गया। ठीक है, और एक और सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सॉरी ये वाला भी। बनिहाल पास कहां पड़ेगा? बनिहाल पास पीर पंजाल में। ठीक है, तो आंसर क्या? खारदुंगला। खारदुंगला कहां पड़ता है? लद्दाख में। अगर आप गए होंगे लद्दाख तो वहां पे खारदुंगला पास है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जोजिला भी करेक्ट है और बनिहाल भी करेक्ट है, तो आंसर होगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, 1 and 2 ओनली, ये आ रहा है C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। किसके बारे में पूछा है? ब्लैक सोइल के बारे में पूछा है। ठीक है, ब्लैक सोइल के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, द ब्लैक कॉटन सोइल आल्सो कॉल्ड एज रेगुर, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, अच्छी होती है इनकी मॉइस्चर, दे आर रिच इन लाइम, सही बात है ये। दिस सोइल्स आर लेस क्ले फैक्टर नहीं होता इनके अंदर, हाई क्ले फैक्टर होता है, क्ले हाई होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 का कोड मैच करना है। ठीक है, तो 107 का कोड मैच कर लेते हैं। दोयांग, दोयांग कहाँ आएगा? नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद गोमुती, गोमुती कहाँ जाएगा? त्रिपुरा में। उसके बाद कपिली, कपिली कहाँ जाएगा? आसाम में। और उसके बाद रंगनाडी कहाँ जाएगा? D का 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A। तो 107 का आंसर होगा A। नेक्स्ट 108, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108 का आंसर हो जाएगा A। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बारे में पूछ रहा है इंडस के बारे में। द सतलुज ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज द लैंगचेन खाम्बो, ये सही बात है बिल्कुल। सतलुज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, बिल्कुल सही है। ठीक है, द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस सिस्टम, नहीं झेलम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा चेनाब होगा, तो ये इनकरेक्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 पूछ रहा है इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो इग्नियस रॉक का भी है और साथ साथ मेटामॉर्फिक रॉक का भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मेटेरोइट, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑन द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ द केमिकल वेदरिंग, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका थॉइंग। ठीक है, सोल्यूशन, हाइड्रेशन, रिडक्शन, तीनों
किसका पार्ट है, केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। थोइंग जो है वो फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से शायद केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 126। 126। हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, कई बार पूछा। इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार बताया था कि अगर क्वेश्चन आएगा तो विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आंसर इसका हो गया लॉर्ड विरूपाक्ष किसकी पूजा क्या करते थे, लॉर्ड विरूपाक्ष भगवान की पूजा क्या करते थे। उसके बाद डोमिंगो पियास ने किसके बारे में बताया है, तो इसका 126 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 127, ठीक है, 127 ने ऑफ मीडियम हाइट किसके बारे में बताया है, कृष्णदेव राय के बारे में बताया है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, ये है सेट ए। तो आप अपने आंसर सेट ए के अकॉर्डिंग मार्क कर लेना, करेक्ट कर लेना। और किसका कितना स्कोर आ रहा है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी है। आंसर हो जाएगा इसका 10th शेड्यूल। ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने इस बार बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। क्वेश्चन जो बनाए हैं वो बहुत ही इजी बनाए हैं। नेक्स्ट 129, 129 का जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 129 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 130 का डी। ठीक है, 130 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सही डी। उसके बाद नेक्स्ट 131 का आंसर जो सही होगा वो होगा सी। ठीक है, 14 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, कहां चला गया पेन, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। ठीक है, 132 का आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल के अंदर जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। ये दोनों टर्म ही एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड, तो या तो ये सही होगा या सही होगा, यस और नो, समझ में आई कि नहीं? फिर इसका मतलब ये दोनों सही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही बता रहे हैं अभी। ठीक है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। ठीक है, फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, बता तो रहा है नॉट एब्सोल्यूट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 पंचशील के ऊपर है। 1954 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कल्चरल कोऑपरेशन की बात नहीं की गई थी। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कल्चरल कोऑपरेशन की बात नहीं थी। ठीक है, तो 133 का आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। ठीक है, फ्रीडम फाइटर कर्नाटका बलाऊ सैक्रिफाइस कानाकलाता बरुआ सैक्रिफाइड हर लाइफ व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। कोरलिस फोर्स सबसे ज्यादा कहां होगी, जहां पे इक्वेटर के बीच में और जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट होगा वहां से होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा कोरलिस फोर्स लगेगी क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस वहीं पे होगा इक्वेटर के साथ। ठीक है, तो 135 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। अब पूछ रहा है कि इनमें से कहां पे सनरेज जो है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होंगी, यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे कौन कौन सी सिटी आएंगी, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कौन कौन सी सिटी आएंगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ बिहार कहां आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है,
छत्तीसगढ़ कहाँ आएगा, यहां से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती ही है। मणिपुर भी ऊपर आएगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और राजस्थान से भी पास होती है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ को एलिमिनेट कर दो, तो आंसर हो जाएगा बिहार एंड मणिपुर 1 and 3। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 जी हाँ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए का, ठीक है, इसके अंदर भी ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर होगा बी। बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 138 का मार्क कर लिया, 138 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 139, ठीक है, 139 का पूछ रहा है कि लेटरेट सोल के अंदर कौन सा एप्रिशियल अमाउंट में, मतलब काफी होता है, वो होता है कैल्शियम। आंसर हो जाएगा 139 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के नहीं, एक और बचा है 140 के अंदर ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये मानसरोवर लेक के नजदीक से राइज होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इट टेक्स ए यू टर्न नियर नामचा बरवा एंड एंटर्स इंडिया थ्रू ए गोर, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हो जाएगा दोनों का सही, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद पूछा है नोट मी बट यू, क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, किसका मोटो है ये? ठीक है, तो ये मोटो है नेशनल सर्विस स्कीम का। ठीक है, तो 141 का जो आंसर होगा वो होगा बी, नेशनल सर्विस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन किसके साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिट इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। कोझिकोड हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ऑफ सिटीज ऑफ म्यूजिक, गलत है। ठीक है, गरबा ऑफ गुजरात हैज बीन डिक्लेयर्ड एट द यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार साल से करंट अफेयर में है, तो आंसर ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ग्वालियर हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेट अंडर द सिटी ऑफ लिटरेचर। एक्सचेंज कर दिया दोनों को, ग्वालियर को और कोझिकोड को एक्सचेंज कर दिया है। सिटी ऑफ लिटरेचर जो है कोझिकोड है, ठीक है, और सिटी ऑफ म्यूजिक जो है वो ग्वालियर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितने पूछ रहा है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हुए? एक स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 145। ठीक है, 145 का आंसर जो होगा वो होगा सी, सॉरी 145 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है, 146 का भी आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 146 का करेक्ट आंसर इज द सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, 147 फिर से आगे चलते हैं। 147 नाटो के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और अभी इसका फिनलैंड नया मेंबर नहीं बना है, इसका मेंबर बना है स्वीडन। तो स्वीडन इज द करेक्ट आंसर, तो स्टेटमेंट गलत है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 148, जनवरी 2024 का करंट अफेयर पूछ लिया है। ठीक है, और किसके साथ ब्रिज बना रहे हैं हम? तो ब्रिज तो हम एक ही कंट्री के साथ बनाते हैं मोस्टली, जिसके साथ हमारा बॉर्डर होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। हालांकि भूटान बयान भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर नेपाल है। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज हम यूएसए के साथ नहीं करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वरुण, क्योंकि हम ये करते हैं फ्रांस के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट 150 का आंसर होगा बी, क्योंकि 10th रैंक नहीं है इंडिया की। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट विशाखापट्टनम नहीं होगा, ये है मुंबई में हुई थी ये समिट। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है, मोदी जी ने मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया था इसी समिट के
अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, काफी पुराने करंट अफेयर पूछे थे, तो करंट अफेयर यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इस बार 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन ठीक ठाक थे। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट ही कहूंगा, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी थे इस बार। इवन ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी काफी इजी थे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में। Jain, today we have to discuss about the physics NDA 2024 1 सितंबर सेट ए क्वेश्चन पेपर्स। आइए हम देखते हैं कि एनडीए 2024 में सेट ए में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर की क्या है। कल हम मोर डिटेल डिस्कशन करेंगे, आज सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है 73 नहीं 89। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है का आंसर है सी। एंड क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है डी। डी। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है सी। 121। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है डी। वन 123 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है 125 का आंसर है सी। थैंक यू। कल हम मोर डिटेल्स आप लोग को डिस्कस करेंगे। आज हमने आंसर की आपके सामने डिस्कस किया। कल हम और एक्सप्लेन करेंगे सभी क्वेश्चंस का। जय हिंद, जय भारत।